Saturday ki classes. Today we discuss, that is part 6. In previous part, that is part 5, already discussed AC circuit containing pure resistance. In pure resistance, voltage current are in same phase. That means phi equal to 0. Okay. So today, that is part 6. That is module 2nd. And part 6, that is single phase AC circuit. Today we discussed the AC circuit containing pure inductance. Okay, that means with negligible resistance. There is no resistance in that circuit. Okay, the AC circuit containing pure inductance. So first we draw the circuit. This is your pure inductance, and supply voltage is given, that is V equal to Vm sin omega t. This is equation number first. Okay, we know that in the pure inductance, what is the value of current? That is I. Okay, so we know that EMF induced in the inductor, that is E equal to minus of L di upon dt. But applied voltage is opposes the EMF induced. That means V equal to minus of E. That means equal to minus of L di upon dt. So here V equal to L di upon dt. L di upon dt. From this relation, what is the value of current I? Because we know the voltage V equal to Vm sin omega t. Okay. So here di equal to 1 by L V of dt. Integrating both sides. And that is equal to, here यदि हम लोग di का इंटीग्रेशन करेंगे, ओके, तो क्या होगा I, and that is equal to 1 by L और V of dt. V की वैल्यू कितना है हमारा? Vm sin ओमेगा t, और इसका करेंगे dt. तो जैसे हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स इक्वल टू Vm बाय L. Vm को बाहर लेंगे, L है ही ऑलरेडी, और sin ओमेगा t को इंटीग्रेट करेंगे, तो दैट इज माइनस ऑफ cos ओमेगा t डिवाइड बाय ओमेगा. Okay, so here current equation I equal to rewrite this equation, I equal to minus Vm by omega L cos omega t. तो इस इक्वेशन में cos है, यहां साइन है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसको भी हम लोग यदि साइन में चेंज करेंगे तो Vm बाय ओमेगा L और साइन ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, बिकॉज पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा, और जब माइनस हम लोग अंदर ले लेंगे तो यहां माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा और ये ओमेगा t रहेगा. ओके, तो दिस इज योर करेंट इक्वेशन. इसमें इस इक्वेशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी?
जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इक्वल टू 1, दैट मीन्स ओमेगा टी इक्वल टू पाई। ओके, हेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, जब इसकी वैल्यू यदि हमारा इस पूरे टर्म की वैल्यू यदि 1 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एम बाय ओमेगा एल, एंड दैट इज इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सएल। तो व्हाट इज द एक्सएल, एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका यूनिट क्या होगा, ओम्स। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे जरूर ओम्स, किसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस के। देन इक्वेशन, दिस इक्वेशन बिकम्स, दैट इज करंट इक्वेशन बिकम्स I equal to, here I equal to Im, because Vm by x omega L को क्या लिखेंगे, Vm by xl, that is equal to Im sin omega t minus pi by 2. This is equation number 2. From equation first and second, current is lagging by pi by 2, क्योंकि यहाँ वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, V equal to Vm sin omega t, and current equation, that is I equal to Im sin omega t minus pi by 2, that means वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितने से, pi by 2. तो we remember that in case of pure inductive circuit, that pure inductance, current is lagging by pi by 2 for pure के लिए. Okay, so from equation, here we write from equation first and second, current is lagging by pi by 2 from voltage. Therefore, what is the value of phi? Phi is the phase angle difference voltage and current. तो यहाँ वोल्टेज का एंगल डिफरेंस क्या है, 0, वोल्टेज का एंगल क्या है, 0, यहाँ पे कितना है, माइनस पाई, दैट मीन्स phi इक्वल टू पाई बाय 2. एंड व्हाट इज द पावर फैक्टर, दैट मीन्स पावर फैक्टर इक्वल टू cos of phi, that is cos of pi by 2, that is equal to 0. The power factor is 0 for the pure inductive circuit. Okay, so we remember that in case of pure resistance, voltage current are in same phase. In case of pure inductance, current is lagging by pi by 2 from voltage. The voltage is constant, that is V equal to Vm sin omega t. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि करंट चेंज हो रहा है, ठीक है. इन केस ऑफ रेसिस्टेंस हमने देखा सेम फेज में था, इस इन केस ऑफ इंडक्टेंस कितने से लैग कर रहा है, पाई बाय 2 से. नेक्स्ट, व्हाट इज द पावर इन, एंड बिफोर डिराइव द पावर इन प्योर इंडक्टेंस, व्हाट इज द वेव फॉर्म एंड फेजर डायग्राम. व्हाट इज द वेव फॉर्म एंड फेजर डायग्राम, क्योंकि हमने रेसिस्टेंस में भी वही चीज किया था, तो सभी में जितने भी सर्किट है हमारा, टोटल 7 सर्किट है, तो सब में वही चीज करेंगे, ठीक है. तो वेव फॉर्म क्या होगा हमारा, दैट इज V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, ये वोल्टेज का हो गया, दैट इज V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी. दिस इज 0, दिस इज योर पाई एंड दिस इज योर t पाई, दिस इज ओमेगा टी और थीटा. ओके, जब करंट की लेंगे, सपोज ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो V equal to 0 from this equation. Here, when omega t equal to 0, what is the value of current? That means Im, and sin omega t 0, minus pi by 2. That means minus of sin minus theta, that is minus sin theta, that is minus of Im, because यहाँ pi by 2 है, क्योंकि ये 0 ओमेगा टी, तो ये I इक्वल टू माइनस Im. दैट मीन्स यहाँ हमारा नीचे से स्टार्ट, ठीक है. तो यहां से स्टार्ट होगा, तो यहां देखो हमारा माइनस, ये माइनस Im आ गया, जब ओमेगा टी की वैल्यू
कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ ओमेगा टी 0 है तो वोल्टेज 0 तो करंट माइनस आई है। तो वेव फॉर्म, दिस इज योर वेव फॉर्म। यहाँ लिख देंगे फिगर, दिस इज योर वेव फॉर्म। ओके, एंड व्हाट इज द फेजर डायग्राम? तो दिस इज योर वोल्टेज V एंड दिस इज योर करंट R। कितने से, सॉरी, वोल्टेज से करंट क्या करेगा, लैग करेगा। तो दिस इज योर वोल्टेज, तो करंट कहां होगा हमारा, नीचे I। कितने से, π/2 से, एंड दिस इज योर 0। तो दिस इज फिगर इज फेजर डायग्राम। ओके, इज इट क्लियर? तो वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितने से, π/2 से। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट? इन मेनी एग्जामिनेशन देयर इज आस्किंग व्हाट डिराइव द पावर इन प्योर इंडक्टेंस इज 0। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, व्हाट इज द पावर इन प्योर इंडक्टेंस, या प्रूव दैट पावर इन प्योर इंडक्टेंस इज 0, प्रूव दैट। तो यहां पे हम लोग प्रूव दैट नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे पावर इन प्योर इंडक्टेंस, पावर इन प्योर इंडक्टेंस। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, प्रूव दैट पावर इन प्योर इंडक्टेंस इज 0। तो जो हमने अभी इक्वेशन डिराइव किया I इक्वल टू, तो डिराइव तो नहीं करेंगे, या तो डिराइव करना पड़ेगा शुरू से, दैट इज करंट का इक्वेशन कैसे आया। अदरवाइज यहां पे लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यदि डिराइव नहीं करेंगे कि करंट का इक्वेशन कैसे आया, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। वी नो दैट पावर P इक्वल टू क्या होता है हमारा, V इंटू I। V की वैल्यू पता है हम लोगों को, Vm साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। Rewrite this equation, that is Vm Im साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहां पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस तो यहां बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे माइनस Vm Im/2, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी। यहां पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये हमारा पावर आ गया। एंड यदि हम लोगों को यहां पे फॉर 1 कंप्लीट साइकिल करेंगे तो लिमिट लगाएंगे 0 से कितना तक, 2π, और इसको लगाएंगे डी ओमेगा टी। आफ्टर इंटीग्रेटिंग, यहां इंटीग्रेट यदि करेंगे तो देखते हैं हम लोग 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, तो माइनस Vm Im डिवाइड बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 से 2π। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, क्योंकि डी ओमेगा टी हमने यहां लगाया। यहां इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू माइनस Vm Im डिवाइड बाई 2, लिमिट रख रहे हैं हम लोग, यदि यहां 2π रखेंगे तो कॉस कितना आ जाएगा, 4π, दैट इज 1, तो ये आएगा माइनस 1/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, 0 लिखें तो कॉस 0 1, तो 1/2, दैट इज इक्वल टू 0। सो पावर इन प्योर इंडक्टेंस इज 0। तो यहां तक हम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि वी नो दैट V इक्वल टू दिस एंड I इक्वल टू, अदरवाइज यू डिराइव फ्रॉम द स्टार्टिंग। हमने स्टार्टिंग से करेंगे कि I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2 कैसे आया।
ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन प्योर इंडक्टर, क्योंकि पावर तो हमारा 0 हो गया, अदरवाइज वैसे भी देखें कि फाई की वैल्यू कितना है, पाई बाई 2, दैट मीन्स पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाई, तो वी इंटू आई कॉस फाई, फाई की वैल्यू पाई बाई 2, दैट मीन्स पी इक्वल टू 0। तो नहीं, वैसे ड्राइव नहीं करेंगे, ऐसे ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर इन प्योर इंडक्टर, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर इन प्योर इंडक्टर, एनर्जी stored in pure inductance, energy stored in pure inductance, what is the value of energy? Okay, so we know that energy इक्वल टू कितना होता है हमारा, चेंज इन पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, P of dt. We know that what is the value of P, that is instantaneous power, that is V into I, P equal to V into I of dt. Okay, and what is the value of I, the V I की वैल्यू, सॉरी V की वैल्यू L di upon dt, V equal to L di upon dt I of dt, हमने v की वैल्यू रखा है L di अपॉन dt, I तो है ही ऑलरेडी, और यहाँ dt, तो dt dt हमारा 1 हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा, L इंटीग्रेशन I di, दैट इज इक्वल टू L I स्क्वायर बाय 2। तो फाइनली लिखेंगे एनर्जी इक्वल टू 1/2 Li square, that is joule. ठीक है, तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, हाफ Li स्क्वायर, यूनिट इज जूल। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर की बात करेंगे हम लोग, तो क्या होगा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, हाफ L Im का स्क्वायर, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर, तो दिस इज योर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, और यूनिट में हम लोग क्या लिखेंगे इसको, जूल। ओके, तो दिस इज योर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। तो हमने इसमें क्या क्या किया, फर्स्ट डिराइव द व्हाट इज द करंट रिलेशन, दैट इज I इक्वल टू Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, and what is the waveform and phasor diagram, and what is the power in pure inductance, that is prove that power in pure inductance is 0, and what is the energy stored, that is half Li square, and what is the maximum energy stored, that is half L maximum value current का square. So write down the question, that is A, solve example based on this theory. Example first, that is solve example. Solve example. ठीक है, A 0.014 Henry choke coil with negligible resistance, with negligible resistance is connected to
is connected to 220 volt 50 hertz supply. A 0.014 Henry choke coil with negligible resistance is connected to 220 volt 50 hertz supply. Determine first part, inductive reactance of the coil. Inductive reactance of the coil, that is choke coil. Second, current flowing through the coil. Current flowing through the coil. Third part, power consumed by the coil. Third part, power consumed by the coil. And fourth part, maximum energy stored in the coil. Maximum energy stored in the coil. Okay. That is four part. First, inductive reactance of the coil. Second part, current flowing through the coil. Power consumed by the coil and maximum energy stored in the coil. Okay. The solution of this question, first write the solution, that is given data. Okay. The given data solution, the given data, V equal to 220 volt and F equal to 50 hertz and L equal to 0.014 Henry. Roughly we make the circuit. जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट. ये चोक कॉइल है हमारा जिसमें कि नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस है. ये चोक कॉइल है हमारा. दिस इज योर चोक कॉइल. ठीक है. और यहाँ पे हमारा सप्लाई गिवन है, दैट इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. दिस इज योर सप्लाई. ये हमारा चोक कॉइल है. ओके. तो व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस? ओके. So we know that what is the inductive reactance, that is XL. Okay, so XL equal to omega L, and omega की value that is 2 pi into F into L, that is 2 pi into 50 into 0.014, that is Henry. Okay, what is the value of XL? That is 4.4 ohms. This is your first answer. Inductive reactance of the coil, that is 4.4. Okay. Next, what is the current flowing through the circuit? That is I equal to, I means RMS value of current. V means VRMS. This is your RMS value of voltage. क्योंकि मेंशन नहीं है कहीं भी. हमने बोला था सिंगल फेज सर्किट में वोल्टेज मीन्स आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज. मैक्सिमम वैल्यू के लिए मेंशन होगा. तो I इक्वल टू V बाय एक्सएल. यहाँ IM लिखते हैं तो VM बाय एक्सएल, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू. तो वोल्टेज भी मैक्सिमम. करंट तो I इक्वल टू V बाय एक्सएल, दैट इज करंट जो फ्लो करेगा दैट इज I, दैट इज IRMS. तो V की वैल्यू 220 डिवाइड बाय 4.4. I think this is your 50 ampere. This is your second answer. Okay. तो
I इक्वल टू 50 एम्पियर एंड थर्ड पार्ट, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट एंड व्हाट इज द थर्ड पार्ट, पावर कंज्यूम. तो पावर कंज्यूम दैट इज P इक्वल टू इन प्योर इंडक्टेंस दैट इज 0. तो आंसर में लिखेंगे कि P इक्वल टू 0 बिकॉज फाई इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज पाई बाय 2 दैट इज P इक्वल टू, यदि बोलेंगे तो VI cos फाई हमारा होता है यहाँ पे, और डिराइव हमने ऑलरेडी किया था दैट इज फाई इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, हियर पावर इज कंज्यूम इज 0. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर. मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, फोर्थ पार्ट, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, मैक्सिमम एनर्जी stored in the choke coil that is equal to half L and maximum value of current का square, half L into Im का square that is equal to 1/2 L की वैल्यू 0.014 into Im की वैल्यू we know that the IRMS value that is 50. The IRMS equal to Im by √2. Im equal to √2 into Im equal to √2 into IRMS. That means 50 into √2 और इसका स्क्वायर. Okay, we will calculate that is 350. I think 355. You can calculate by calculator. That is 50 into √2. That is a square into 0.014 divided by 2, that is 35. That is equal to maximum energy. We denote the energy that is W. The W max equal to, एनर्जी को हम लोग W से भी डिनोट कर सकते हैं या एनर्जी मैक्स लिख देंगे डायरेक्ट 35 जूल. दिस इज योर आंसर. ओके, तो एक हमने सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस थ्योरी दैट इज प्योर इंडक्टेंस. ठीक है, इस पार्ट में इतना ही करेंगे. नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 7 में हम लोग एसी सर्किट कंटेनिंग दैट इज प्योर कैपेसिटेंस. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.